آپ سبھی تیار ہیں؟ بولیے زبور پہلا اور اس کی پہلی آیت مقدسہ، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے۔ سب مل کر بولو آمین۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ عزیزو، زندگی میں یاد رکھیے، ایسے معاملات، ایسے حالات بھی ہماری زندگی میں بن جاتے ہیں جب ہمیں دوسروں سے مشورت کرنی پڑتی ہے، دوسروں سے صلاح لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا خود کا فیصلہ، ہماری خود کی دانش مندی یا ہماری خود کی لیاقت اس وقت جواب دے جاتی ہے اور ہمیں تب دوسروں سے صلاح لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے ہماری زندگی کے ایسے معاملات میں جب ہمیں مشورت کی ضرورت پڑے، ہمیں دوسروں سے صلاح لینی پڑے، اس کے لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کیا کہیں جس سے صلاح لینے والے ہیں وہ خطا کار تو نہیں ہے، کیا وہ شریر تو نہیں ہے، کیونکہ صلاح کے لیے بھی بائبل مقدس میں نے کہا یہ کنڈیشن ٹھہرائی گئی ہے کہ جس سے تم صلاح لینے والے ہو کیا وہ آدمی شریر یا خطا کار تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خطا کار ہے تو تمہیں خطا کی صلاح دے گا، اگر وہ شریر ہے تو تمہیں وہ شرارت کی صلاح دے گا۔ تبھی بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ایک بلیسفل انسان یا ایک افیکٹو انسان کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہ اچھی صلاح کو لیتا ہے اور وہ اچھی صلاح کی پیروی کرتا ہے۔ سب بولو آمین۔ تو یہ ایک کامیاب انسان کا یہ راز ہے۔ اور عزیزو، زبور کی کتاب اپنے آغاز میں ہی یاد رکھو اس تاثر کو انسان کی زندگی سے ختم کر دیتی ہے کہ گناہ بھری زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، یا شرارت بھری زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی ایسا آدمی ایگزامپل بن جائے اور ہم بولیں کہ وہ دیکھو پاپ میں ہے لیکن کتنی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے وہ زندگی کتنی بھی کامیاب ہو لیکن وہ معتبر اور وہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ اور عزیزو، خداوند خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، اسے اثردار اور بابرکت زندگی جینے کے لیے خدا موقع، حالات اور میں نے کہا کئی بار ایسی صلاح بھی دیتا ہے۔ اگر وہ انسان اس موقع کو اپنے لیے لے، اس صلاح کو اپنے لیے لے، تو حقیقت ہے وہ کئی ایسے پاپ میں بھرے لوگوں کو جو کامیاب زندگی جیتے کہ انہیں پیچھے چھوڑنے میں وہ کامیاب ہوگا۔ بولو آمین۔ عزیزو، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر روز دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذہنوں کے اندر یہ بات ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جسم کی خواہش کو پورا کرنا کی وہ کہتے ہیں کہ یہ دیر پا سکون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ ایسی رائے، ایسا مشورہ دیں گے کہ تمہیں سکون چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے تو جسم کی خواہشوں کو پورا کرو، یا پھر جیسا من چاہے ویسی لائف کو جیو، یا وہ ایسا آپ کو بتائیں گے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر یا فلموں میں یا رسالوں میں یا میڈیا پہ اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ آزادی میں حیات کی تکمیل ہے، ہمارا مکمل جیون کہاں ہے؟ وہ بتائیں گے آزادی میں ہے، تم اپنی خواہشوں کو پورا کرو، آزاد ہو، تم فعل مختار ہو تو یہ تمہاری آزادی ہے۔ اور وہ بتائیں گے اور یہ بات ٹھونسنے کی اور اس بات کا چرچا کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہاری آزادی ہی تمہاری حیات کا کیا ہے؟ بولیے تکمیل ہے۔ لیکن یوں یاد رکھو، پاکیزہ زندگی کا یاد رکھو برملا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب آزادی کی بات ہوتی ہے
تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ پاکیزگی کا، راستبازی کا برملا واضح مذاق اڑاتے گئے، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے، زبور نویس یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ اگر تم، اس نے کہا مبارک ہو تو کبھی شریروں کی صلاح پر نہیں چلو گے، اس نے کہا اگر تم مبارک ہو تو خطا کاروں کی راہ میں کبھی بولو کھڑے نہیں ہوو گے، بولو آمین۔ سو زبور نویس لوگوں کی سوچ، ان کے نظریات اور ان کے طرز زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے بیڑا اٹھاتا ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ کس چیز کو بولو؟ نظریات کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے میں نے کہا خیالات کو بدلنے اور انہیں سیدھا کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو کچھ بھی اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے قبلے کو سیدھا کرنے کے لیے، لوگوں کے اطہر بھائی قبلے کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا نظریہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری سوچ ہمارا قبلہ ہے، ہمارے عقیدے ہمارا قبلہ ہے، تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے زبور نویس بیڑا اٹھاتا ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ حقیقی طور پر مبارک شخص وہ ہے جو بے دین نہیں ہے، جو دوسروں کے طرز زندگی کو اپناتا نہیں ہے اور وہ ٹیڑھی صلاح کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا وہ آدمی مبارک ہے۔ ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ سو عزیزو، زبور نویس یہاں ایک نیک آدمی کے کردار کا ذکر کرتا ہے۔ نیک آدمی کا کردار دو باتوں کے اندر ہے، وہ شریر کی صلاح نہیں لیتا اور وہ خطا کاروں کی راہ میں نہیں چلتا، یہ اس کا کردار ہے۔ اور ایون یہ آپ یہ سوچو کہ بائبل زبور پہلا باب اس کی پہلی آیت میں نیک بننے کے اصول بھی بیان کرتی ہے، راست باز کے کردار کا بیان کی نہیں کرتی، بلکہ نیک راست باز بننے کے اصول بھی بیان کرتی ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ نیک یا دیانتدار آدمی شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ نیک یا میں نے بولا دیانتدار آدمی شریروں کی صلاح پر، دیکھنے میں یہ آیا ہے ایک آدمی اگر 1 سال چرچ آئے تو توبہ کرنے اور بپتسمہ لینے میں وہ انتظار کرتا رہتا ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے، لیکن اسی بندے کو 15 دن شرابیوں میں چھوڑو نا، 16ویں دن اس کا پرمٹ ہوگا شراب کا۔ اطہر بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ میں یہ کہتا ہوں لوگ 2 سال چرچ آتے رہے لیکن شاید پاکشاہ توبہ بپتسمہ یا راست بازی کے کاموں کے لیے، اچھی صلاح کے لیے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ڈھیل لیتے گئے، سست گئے اس میں۔ لیکن اگر ایسی لوگوں کو زنا کے اڈے پہ چھوڑا جائے 2 دن کے اندر ان کی بھی گرل فرینڈ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ برائی کو جلدی قبول کر لیتے گئے، اچھی صلاح کو اگر میں آج آپ کو بولوں کہ جناب سورگ کے لیے سوچئے، جناب اپنا بونا شروع کیجئے تاکہ وہاں آپ کا گھر تعمیر ہو، آپ اسپرچل لائف کو جینا شروع کریے تاکہ عاقبت میں اچھا اجر ہو، تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ یہی بولیں گے انہاں دا کام ہی ہے بھائی، ان کا کام ہی ہے یہ۔ ہاں، نوح کا بھی یہی کام تھا، 120 سال کیا لوگوں کو صلاح نہیں دیتا رہا؟ کیا دیتا نہیں رہا؟ بولو کہ یہ کشتی جو تم تعمیر ہو رہی ہے نا، اس میں تم بچ جاؤ گے۔ ایک بھی آدمی اس صلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں عزیزو، خدا کی تخلیق میں نا انسان واحد ایسی ہستی ہے جو آنکھیں بند کر کے چلتی ہے، باوجود اس کی کہ آنکھیں اس کی ہیں لیکن وہ بند کر کے چلتے گئے۔ فیصلے لینے میں اتنے سست ہیں، اچھی صلاح کو قبول کرنے میں اتنے سست ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک آدمی کی زندگی کا راز یہ ہے وہ کبھی شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ عزیزو، یہاں اس دنیا کے بدکاروں کے کردار کو 2 باتوں میں بیان کیا گیا۔ اس دنیا کے جو بدکار ہیں نا، ان کو 2 باتوں میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1 کہ وہ شریر ہیں، مطلب کہ وہ بے دین اور بے خدا ہیں، ان کا کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 2 بائبل یہ کہتی وہ خطا کار ہیں، مطلب کہ وہ ٹھٹھا باز ہیں، وہ مذاق میں لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے وہ غیر سنجیدہ ہیں، جبکہ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے۔ عزیزو، میں نے کہا اگرچہ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا
बदकारों से भरी पड़ी है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या रास्तबाज लोग यहां नतीक हैं? बोलिए, क्या मुझे बताइए, नूह के जमाने में सभी मुझे बताइए बदकार थे, क्या कोई रास्तबाज नहीं था? था। अजीजों, क्या सदूम अमूरा के वक्त में मुझे ये बताइए, क्या सभी नारास्त थे? कोई रास्तबाज नहीं था? था, बाइबल कहती है। अजीजों, कोरा के वाक्या में जब जमीन फट गई तो क्या सभी नारास्त थे? बाइबल कहती है रास्तबाज भी लोग थे। इसलिए बाइबल ये कहती है आज हमें ये मशवरा और मैंने कहा ये सलाह कबूल करनी है और इस बात के लिए फैसला लेना है कि हमें रास्तबाजों की मंडली में अपने आप को शरीक करना है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल की ये सच्चाई है। ऐसे लोग खुदा के खिलाफ बगावत करते गए, जो शर में चलते गए, जो शरारत में गए, जो खता में गए, मैंने कहा वो हमेशा खुदा के खिलाफ बगावत में रहते गए। ऐसे लोग दीदा दानिस्ता गुनाह के मुर्तकिब होते गए। उनसे गैर इरादत नहीं होता, भूल चूक से नहीं होता, वो जानबूझकर करते गए। उन्हें पाप का इल्म होता है लेकिन वो करते गए और उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि जब इस पाप के करने का रिजल्ट आएगा तो सिवाय पछतावे के कुछ भी उनके हाथ में रहेगा नहीं। अजीजों, जिस लफ्ज का यहां पर तर्जुमा शरीर किया गया है, जबूर पहला बाब उसकी पहली आयत, जिस लफ्ज का तर्जुमा शरीर किया गया है, इससे मुराद है वो लोग जो मतलून मिजाज हैं, वो लोग जिनकी सोच मुस्तहिकम नहीं है, जो गैर मैंने कहा मुस्तहिकम है, या ये सोचो कि वो मुसम्मम इरादे में नहीं है, पक्का इरादा नहीं है, पल में तोला पल में मासा, अभी फैसला किया कि जनाब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कल बाहर जाके आजमाइश का मौका आता है तो जिन चीजों के लिए उन लोगों ने सोचा होता है वो उन्हीं के शिकार और उन्हीं अमाल में वो पाए जाते हैं। सो मैंने कहा ऐसे लोग, स्टडी ये कहती है इनके सामने कोई मतय्यन मंजिल नहीं होती। जो गैर मुस्तकिल या मतलूम मिजाज या मैंने कहा सोच में मुस्तहकम नहीं होते, मैंने कहा कोई मंजिल इनके लिए नहीं होती। और मैंने कहा वो किसी भी मतय्यन कानून के वो जनाब ताबे नहीं होते गए, क्योंकि उनके सामने एक ही बात होती है कि वैसा जियो जैसा मन चाहे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, तो यही तकमीले हयात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल ये कहती है मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर, बोलिए, और खताकारों की क्या बाइबल कहती है राह में खड़ा नहीं होता। अजीजों, याद रखो, मैंने कहा जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं, ऐसे वाकयात और ऐसे हालात हमारे लिए पैदा हो जाते हैं जब हमें दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ती है, जब दूसरों के मशवरे की जरूरत पड़ती है। तभी बाइबल ये कहती है कि जब ऐसे हालात और वाकयात हो तो तुम्हें दानिश्वर लोग चाहिए, तुम्हें बोलिए दानिश्वर लोग चाहिए। आज का हमारा जो मजमून है एक कहानी के जैसा है, अक्लमंद बाप का बेवकूफ बेटा, अक्लमंद बाप का बेवकूफ बेटा। और अक्लमंद की बातों को भी देखेंगे और बेवकूफ बेटे की बातों को भी देखेंगे, लेकिन अक्लमंद बाप की बातें ये हैं, बाइबल ये कहती है नंबर 1 कि वो दयानतदार है अगर वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। नंबर 2 बाइबल कहती है उसकी जिंदगी की बड़ी खूबी ये है कि वो खताकारों में खड़ा ही नहीं होता, वो खताकारों में, बोलिए, खड़ा नहीं होता। अब मुझे ये बताइए, क्या बोलते नहीं है खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग पकड़ता है? ऐसा नहीं बोलते कि महफिल बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं? कैसा नहीं बोलते एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है? अजीजों, बाइबल ये कहती है जिन खताकारों में अगर हमारा उठना बैठना है तो याद रखो इसमें कुछ शक नहीं है कि आने वाले वक्त में 5वें 7वें 8वें 9वें 10वें वो खताकार हम भी हो सकते हैं। बाइबल ये कहती है दयानतदार, नेक और रास्तबाज आदमी की जिंदगी के 2 बड़े राज हैं। उसे हमेशा सलाह के लिए अच्छे लोग चाहिए और वो अच्छे लोगों की सुनेगा।
اور اسے بائبل کہتی ہے چلنے کے لیے خطاکار لوگ نہیں چاہیے، ان راہ پر، ان راستوں پر وہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ بولو آمین۔ کہتے ہیں نیک آدمی شریروں سے بالکل الگ الگ اپنی لائف جیتا ہے اور وہ شریروں کی کسی بات کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ اس آدمی کی زندگی کا راز رہے گا۔ ہاللویا۔ سو نیک آدمی، میں نے کہا بائبل یہ کہتی ہے شریروں کی راہ اختیار نہیں کرتا اور وہ ان کے کاموں سے ہمیشہ باز رہتا ہے، ان کے کاموں کو اپنے لیے عبرت جانتا ہے، ان کے کاموں سے سبق سیکھتا ہے، کیونکہ خداوند خدا نے ہمیں آنکھیں، شعور، سمجھ، عقل، فہم اسی لیے عطا کیا ہے کہ ہم جان بوجھ کر ان کے جیسے نہ بنے بلکہ دانستہ طور پر اپنے لیے بہتر فیصلے لے پائیں۔ سب بولو ہاللویا۔ سو ایک سچا مسیحی کہتے ہیں کہ دنیا دار لوگوں کی شکل کبھی اختیار نہیں کرتا، زمانہ تو اپنا سٹائل بدلتا رہتا ہے۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی تھی کھلے پاؤنچے، بڑی کلمیں، بڑے بڑے بال، سوچو اب وہ نہیں ہے، تو جو اب ہے وہ کل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا فیشن، اس کا سٹائل، اس کا طرز زندگی بدلتا رہتا ہے۔ راست باز لوگوں کے سامنے یاد رکھو بائبل ایگزامپل رہتی ہے۔ ہاللویا۔ وہ ہمیشہ اس کھوج میں رہتا ہے کہ خدا کی مرضی میرے لیے کیا ہے۔ وہ درجہ بدرجہ خدا کی صورت پر بدلتا ہے، نہ کہ درجہ بدرجہ دنیا کی صورت پر بدلتا ہے۔ تبھی بائبل کہتی کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ ہاللویا۔ عزیزو، بائبل کے اندر آئیے ایک سٹوری کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے ساتھ پڑھنا پہلا سلاطین اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ پہلا سلاطین اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ دیکھیے میرے ساتھ۔ عقل مند باپ کا کون سا بے وقوف بیٹا ہے؟ پڑھیے ذرا۔ اور ربہام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ ربہام کون تھا؟ یہ پہلا ہمارا سوال ہے۔ ربہام کون تھا؟ اس کا جواب ملے گا پہلا سلاطین 14واں باب اس کی 21 آیت۔ اس کے مطابق بائبل کہتی ہے یہ سلیمان کا بیٹا تھا، یہ سلیمان کا بیٹا تھا۔ اور بائبل یہ نہ یہ سلیمان کا بیٹا تھا ربہام۔ پہلا سلاطین 14واں باب اس کی 21 آیت۔ ربہام میں نے کہا یہ سلیمان کا بیٹا تھا اور سلیمان کے بعد یہ سلطنت کرنے کے لیے اقتدار میں آیا۔ 41 سال کا تھا، بائبل کہتی ہے جب اس نے سلطنت کرنا شروع کی، اور 17 برس اس نے اسرائیل پر حکومت کی۔ 17 سال اس نے حکومت کی۔ عزیزوں، کہتے ہیں کہ اس کے باپ سلیمان کے زمانے میں اسرائیل قوم پر بہت بڑا بھار ڈالا گیا تھا، اور وہ بھار پتہ کیا تھا؟ اس نے اپنی قوم پر ٹیکس کی صورت میں بھار ڈالا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا عوام سے نکال سکتے ہو نکالو، کیونکہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے، تو عوام سے جتنا ٹیکس لگا سکتے ہو۔ سنیں قبروں پہ بھی لگ گیا ٹیکس، ہے نا؟ جو مردے دفن ہو گئے وہ بھی ٹیکس دیا کریں گے۔ تو مطلب یہ سلیمان کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ جتنا ٹیکس لے سکتے ہو لو۔ اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو، کہتے ہیں کہ شاہی تعمیرات کے اخراجات اس نے خزانے سے تھوڑی نکالے تھے پورے کرنے کے لیے، اس نے عوام سے پورے کیے تھے۔ شاہی تعمیرات اس نے سوئمنگ پول بنائے، اپنی بیویوں کے لیے محل بنائے، خدا کے لیے بے گھر بنایا، اپنا بھی محل بنایا۔ بائبل یہ کہتی ہے ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سلیمان نے عوام پر بھار ڈالا۔ جتنا ٹیکس نکالتے ہو نکالو، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ آؤ پڑھو ذرا پہلا سلاطین 12واں باب اس کی 4 آیت میں۔ پہلا سلاطین اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، یہ سارے ربہام کے پاس آئے کہ تیرے باپ سلیمان سے ہم بڑے تنگ تھے، اس نے بڑا ٹیکس ہم پر لگایا، ہمیں کچھ ریلیف دے، کوئی پیکج اناؤنس کر، کوئی بجٹ اناؤنس کر۔ ایسا ہی نہیں ہوتا
बजट आता है तो सभी लोग तैयारी में होते हैं, सरकारी मुलाजिम खास तौर पर। सैलरी बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो उसी बजट को कोसते गए। बाइबल कहती है सुलेमान मर गया, अपने बाप दादा में सो गया उनके साथ वो। अब उसका बेटा रुबहाम सल्तनत करने लगा। लिखा है 12वें बाब की 14वीं आयत 4 आयत में, 12वें बाब की 4 आयत में, पहला सलातीन कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर दिया था, सो तू अब अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे, हम तेरी खिदमत करेंगे। इजराइली खिदमत करने को तैयार हैं। इजराइली उन्होंने इनकार नहीं किया कि जैसे तेरे बाप के ताबे थे तेरे भी रहेंगे, लेकिन एक अर्ज है, हमें कुछ रिलीफ दे, है ना, हमें कुछ सुख का सांस आना चाहिए। तेरे बाप ने हम पर बहुत भार डाला हुआ था। आपको पता है बाइबल कहती है उस सल्तनत में, सुलेमान की सल्तनत में अगरचे अमन रहा, दाऊद की लड़ाइयां थी, सुलेमान ने अपने जमाने में एक भी लड़ाइयां नहीं लड़ी। सुलेमान के जमाने में कहा जाता है अगरचे वो अमन का दौर था, लेकिन अजीजों कहते हैं तो भी उसकी सल्तनत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कमियां पाई गईं। बेशुमार बातें ऐसी थी, लेकिन उनमें मैं 2 का यहां पर चर्चा करूंगा। अगरचे बेशुमार थी उसकी सल्तनत या उसके दौर में कमियां रखी, लेकिन 2 का जिक्र ये है। नंबर 1 मैंने कहा उसने शाही तामीरात के लिए नंबर 1 जबरी काम करवाया। नंबर 1 क्या किया? जबरी से मतलब है बेगार में मतलब कोई पैसा पूसा नहीं है, कम करो, कोई पैसा पूसा कोई नहीं है, खजाने खाली हैं, तुम्हें उजरत नहीं मिलेगी। क्या बाइबल में लिखा? मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, मजदूर अपनी मजदूरी का। सुलेमान की सल्तनत बाइबल कहती है इसी हिस्से में कमजोर पाई गई कि उसने मजदूरों की मजदूरी को खाया। 13 साल अपने महल पर काम करवाया, कोई मजदूरी लोगों को नहीं दी। 7 साल खुदा का घर बनवाया, कोई मजदूरी लोगों को नहीं दी। अजीजों, नंबर 1 मैंने कहा इसकी जिंदगी में, इसकी सल्तनत में पहली कमजोरी कि शाही तामीरात को इसने जबरी तौर पर करवाया, बेगार में काम करवाया। नंबर 2, शाही तामीरात के अखराजात पूरे करने के लिए जितना टैक्स इसने लोगों पर जितना डाल सकता था उसने डाला। इन दोनों बातों से छुटकारा पाने के लिए बाइबल कहती है सारे इस्राएली सुलेमान के बेटे रुबहाम के पास आए कि जनाब हमें टैक्स माफ कर दो, हमसे टैक्स उठा लो और आज से हमारी मजदूरी का हमें हक दिया जाए, हमें भी अपने परिवार चलाने के, हमें भी अपना गुजर करना है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, रुबहाम का उन लोगों को क्या जवाब रहा? आओ पढ़ो जरा 5 आयत में मेरे साथ देखो, इसी की 5 आयत जिसको पहले पढ़ा हमने, पहला सलातीन, और जनाब उसका मैंने कहा 12वां बाब उसकी 5वीं आयत में क्या जवाब उसने दिया। तब उसने उन लोगों से कहा अभी तुम 3 रोज के लिए चले जाओ, तब मेरे पास आना। सो वो चले गए। 3 रोज के बाद तुम आओगे। अब 3 रोज के अंदर वो क्या करना चाहता है? वो मशवरत करना चाहता है, सलाह लेना चाहता है। अजीजों, एक बात सुनो जरा, सुलेमान की कितनी बीवियां थी, कितनी हरमें थी कुल मिला के? 1000 हरमें और बीवियां, एक ही मान नहीं है। तो ये सोचो 1000 बीवियां और हरमें। और हैरानी की बात यह है कि उसकी तमाम बीवियों में से औलाद का जिक्र सिर्फ एक ही बच्चे के लिए, और वो कौन है? रुबहाम। अजीजों, 1000 बीवियों में से औलाद तो उसकी हो ही होगी ना, लेकिन जिक्र सिर्फ बाइबल में एक ही का है, रुबहाम का जिक्र है। और उसी से उसकी नस्ल और उसकी सल्तनत आगे चली है। और आप ये सुनकर और हैरान होंगे कि दुनिया का सबसे अक्लमंद शख्स जिसका बेटा दुनिया का सबसे बेवकूफ निकला, दुनिया का अक्लमंद आदमी कौन था? बोलो, सुलेमान। और एक चीज याद रखो, विजडम कहते हैं कभी ट्रांसफर नहीं होता।
इसलिए तो याकूब के खत में लिखा है, तुम खुदा से अक्ल मांगो तो वो तुम्हें देगा, तुम खुदा से हिकमत मांगो। कहते हैं ग्रेस और विजडम ये कभी ट्रांसफर नहीं होते, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है पर ये नहीं ट्रांसफर होते। इसके लिए मांगना पड़ता है, इसके लिए हमें खुद अपनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। दुनिया का अक्लमंद बेटा, दुनिया का अक्लमंद बाप सुलेमान, लेकिन उसका बेटा बाइबल कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ख और बेवकूफ साबित हुआ। आप हैरान होवोगे, उसकी वजह यह है कि उसने मशवरत जब लेनी चाहिए तो सुनो जरा, बाइबल कहती है अजीजो, दो तरह के दरबार हमें दिखते हैं। सुलेमान का दरबार कहते हैं जो हिकमत का बाजार था। सुलेमान का दरबार बोलो हिकमत का बाजार, क्योंकि उसकी शोहरत अहले मशरिक में थी। अहले मशरिक का इल्म कहते हैं दुनिया में सर चढ़कर बोलता था, लेकिन अहले मशरिक के ऊपर सुलेमान की हिकमत बाइबल कहती है बर्तरी ले गई। अजीजो, सुलेमान का दरबार कहते हैं हिकमत का बाजार था, जबकि रुबहाम का दरबार कहते हैं बेवकूफी और अहमकाना कामों का दरबार था। क्योंकि वो यंग है और वो बुढ़ा है और उम्र का तजर्बा उसके पास है। लोग रुबहाम की कहते हैं सारी जिंदगी खिदमत करने को तैयार थे। उन्होंने कहा हम जैसे तेरे बाप के ताबे थे ना, वैसे ही तेरे होंगे, तेरी भी हम सेवा करेंगे। उसने कहा पर हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, हमें कुछ रिलीफ दे, टैक्स माफ कर दे, जबरी काम लेना माफ कर दे। अजीजो, बाइबल कहती है वो चाहते थे कि रुबहाम सिकम में आए और हमारे साथ अहद करे, एक कवनेंट बांधे कि ठीक है जो मेरे बाप ने किया है वो मैं तुमसे नहीं करूंगा, जो मेरे बाप ने कहा वो मैं तुम्हारे आगे तुम्हें नहीं दूंगा। अजीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने रुबहाम से उसके बाप की हिकमत के बारे में शिकवा किया था। वो बेजार हुए थे, उन लोगों ने गिला किया था कि तेरे बाप ने बहुत जुल्म किया हम पर, तेरे बाप ने हमसे बहुत जबर लिया, लेकिन तू ऐसे मत करना। अगरचे कहते हैं सुलेमान के जमाने में टैक्स बहुत ज्यादा लगाया गया था, तो भी कहते हैं वो 2 और 3 चीजों का था। नंबर 1 अमन का, नंबर 2 कहते हैं सहूलत का, नंबर 3 इफराद का। हर चीज कसरत में थी, लोगों को सहूलत भी थी, अमन का दौर था, लेकिन इन तीनों चीजों के होने के बावजूद लोगों को हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता था और लोग इससे तंग थे। उस शख्स ने, बाइबल कहती है रुबहाम में 2 किस्म के लोगों से सलाह ली। आइए पढ़ेंगे जरा, 6 आयत से पढ़ेंगे। हाँ, 12 चैप्टर यही पहला सलातीन उसकी 6 वर्ष में सुलेमान के बेटे रुबहाम ने, मैंने कहा जब लोगों का सुना कि लोग चाहते रिलीफ दे, तो उसने 3 दिन की मोहलत चाहिए। अब 3 दिन की मोहलत के दौरान उसने सलाह लेना चाहिए, तो सलाह किससे ली? 6 आयत बहन शाजिया पढ़ी ऊंची आवाज में। हाँ जी, हाँ 7 आयत से मैं पढ़ता हूं। उन्होंने उससे ये कहा अगर तू आज के दिन इस कौम का खादम बन जाए, नंबर 1 क्या बन जाए, और नंबर 2 उनकी खिदमत करे, और नंबर 3 उनको जवाब दे और उनसे मीठी बातें करे, और आगे बदले में वो सदा तेरे खादम बने रहेंगे। रुबहाम को मशवरत अच्छी मिली है और कहते हैं नंबर 1 तो उनका खादम बने, उनकी खिदमत करे और उनसे बड़े तहम्मुल से, धीरज से, तहम्मुल से मीठी आवाज में बात करे, वो बदले में तेरी खिदमत करेंगे। अजीजो, इस्राएली बुजुर्गों ने रुबहाम को खादम के तौर पर काम करने का मशवरा दिया, और बिलीव करो कि ये मशवरा टोटल बाइबल के मुताबिक था, उसके अगेंस्ट नहीं था। जो मशवरा इजरायली बुजुर्गों ने दिया वो बाइबल से मेल खाता मशवरा था, क्योंकि पहला पत्रस 2 की 13 और 14 में लिखा है कि खुदावन की खातिर
इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के, इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। 14 आयत हाकिमों के, इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए भेजे हुए हैं। हुक्मरान, उसने कहा खुदा की तरफ से बोलिए भेजे हुए हैं। और रोमियो 13:4 के मुताबिक, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। इजरायली बुजुर्ग ये जानते थे कि ये पोजीशन जो रुबहाम को मिली है, ये पोजीशन के लिए खुदा ने इसे सेलेक्ट किया है और इसे बादशाही खुदा की तरफ से भेजी गई है। और वो कहते हैं कि तुझे खादम बनने के लिए खुदा ने चुना है, क्योंकि रोमियो में यही लिखा है कि वो सब खुदा के खादम हैं। अजीजों, बाइबल ये बताती है कि बुजुर्गों ने कहा कि तू इजराइल का खादम बन, मीठी बात में उनसे, मीठी बातों में उनसे बातें कर और उनके साथ तहम्मुल से पेश आ, वो सदा तेरी खिदमत करेंगे। अजीजों सुनो, हम ये पढ़ते गए, इस्राएली बुजुर्ग इन दोनों बातों के, मैंने कहा, अच्छे नतायज को जानते थे कि ये भेजा गया है खुदा की तरफ से, और दूसरा नंबर 2, ये खुदा का खादम है। वो इस बात को जानते थे, लेकिन जो पोजीशन पर था ना, वो इक्तदार के नशे में था, वो सच्चाई से कोसों दूर था। और बाइबल कहती है नंबर 2 में लिखा है, रुबहाम में इजरायली बुजुर्गों की मशवरत को नीच और हकीर जाना। आओ पढ़ो जरा, 8 आयत से पढ़ेंगे। पर उसने उन उम्र रसीदा लोगों की मशवरत जो उन्होंने से दी छोड़कर उन जवानों से जो उसके साथ बड़े हुए थे, उसके हुजूर खड़े थे, मशवरत ली। लंगोटी यारों की मशवरत, जिनसे वो बड़ा बेतकल्लफ है, उनकी मशवरत। बाइबल कहती है बुजुर्गों के तजर्बे, उनकी उम्र और उनके आजमूदा नुस्खों को हकीर जाना, और ये नहीं समझा कि ये तो मेरे बाप के जमाने में दरबार में खड़े रहने वाले दानिश्वर लोग हैं, ये मुझे अच्छा मशवरा देंगे। बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये पढ़ते कि उसने उनकी मशवरत को हकीर जाना, और लिखा है अपने लंगोटी यारों से जाकर सलाह लेनी चाहिए कि इजरायली लोग सारे मेरे पास आए रिलीफ मांगने के लिए, मैं क्या करूं। आओ पढ़ो 10 आयत में उन जवानों ने क्या सलाह दी उसे। इन जवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे, उससे कहा तुम लोगों को यूं जवाब देना, जिन्होंने तुझसे कहा कि तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया तो उसको हमारे लिए हल्का कर दे। जवाब क्या है? सो तो उनसे यूं कहना, मेरी चुंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है। चुंगली क्या है? चीची की उंगली है। कहता है मेरी जो चुंगली है ना, छोटी उंगली, मेरे बाप की कमर से भी मोटी है। और कहता है 11वीं आयत में, उन्होंने कहा अब गो मेरे बाप ने भारी जुआ तुम पर रखा है, तो भी तुम्हारे जुए को और ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से, क्या लिखा है, ठीक बनाऊंगा। मुझे बताओ, ये मशवरत मानने के लायक है? क्या ये हिकमत से भरी मशवरत है? और बाइबल ये कहती है इस जवान ने, लिखा है बुजुर्गों की मशवरत को हकीर जाना, और लिखा है जवानों से सलाह ली तो जवानों ने उल्टी सलाह दी। अजीजों, वो जवान जिन्होंने रुबहाम को बुरी सलाह दी, कहते हैं वो बजाते खुद जोशीले और नहायत खुद गर्ज लोग थे, वो सेल्फिश लोग थे, और उन्होंने बादशाह को सलाह दी। और अजीजों ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो मुतालबा तुम्हारे पास लेकर आए गए उनको ये धमकी अमेज जवाब देना। और लिखा है धमकी अमेज जवाब क्या है? तुम्हें बिच्छुओं से मैं डंग मरवा के तुम्हें दर्द दूंगा। मेरे बाप ने तुम पर जो जुआ डाला
मैं इसको और तुम पर टाइट करूंगा और भार तुम पर डालूंगा। अजीजों, अगले बंदे तो खिदमत करने को तैयार गए, उनका तो दिल उसके लिए कुशादा है, वो तो उसकी सेवा करने को तैयार गए। लेकिन मैंने कहा, दुनिया के अक्लमंद बाप का बेवकूफ बेटा, ऐसा है कि नहीं, बोलिए। और बाइबल ये कहती है अजीजों, रुबहाम बादशाह ने ये जाने बगैर कि कौन सी सलाह उसके लिए बेहतर है, बस ये देखा कि इन दोनों लोगों में से किन के साथ मैं बेतकल्लफ हूं, किन के साथ मेरा उठना बैठना है, किन के साथ मेरी यारी दोस्ती है। अजीजों, बाइबल ये साफ कहती है कि यारियां या बुरी सोबतें या बुरी सोसाइटी हमारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देगी। अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसे मामले के लिए सलाह लेना चाहते हैं, बस ये सोच लो कि जिनसे हम सलाह लेने वाले हैं, क्या वो मिच्योर हैं, क्या वो स्पिरिचुअल हैं, क्या वो अपलाइन के हैं, वो हमसे ज्यादा ऊपर हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। एक भटका हुआ आदमी किसी को क्या सलाह देगा, बोलिए, क्या सलाह देगा? क्यों भाई परवेज? अपना वायरस नहीं ट्रांसफर करेगा, ना उम्मीदी मायूसी कोई ट्रांसफर करेगा। पर बाइबल ये कहती है, अगर हमें सलाह चाहिए तो लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों से सलाह नहीं लेता, जो शरीरों को अपना मयारे जिंदगी नहीं बनाता, जो शरीरों के तर्ज जिंदगी को अपनाता नहीं है। मैंने कहा, वो आदमी मतलून मिजाज है, गैर मुस्तहिकम है वो आदमी जो अपना फ्यूचर सोच के नहीं चलता। इसलिए मैं कह चुका हूं कि खुदा की तख्लीक में सबसे ज्यादा सुस्त, काहिल, लापरवाह जो किस्म पाई जाती है ना, वो सिवाय इंसान के और कोई नहीं है। अजीजों, कहते हैं जब भौचाल आने वाला होता है ना, जब सैलाब आने वाले होते हैं, तो परिंदों को, चिरिंदों को पहले पता चल जाता है और वो घोंसलों से निकल के हवा में या महफूज मुकाम में चल निकलते हैं। बोलो, ऐसा है कि नहीं? स्टडी यही बताती है, साइंस यही बताती है। अगर साइंस ये बताती है तो बाइबल नहीं बताती कि मेरे लोग मेरे नाम को नहीं जानते। हवा के परिंदे लक लक, वो सब परिंदों का बात उनका जिक्र करता है कि वो सब जानते अपने मालिक को भी। बैल अपने मालिक की कुरली को जानता है, लेकिन मेरे लोग मेरे नाम की कदर नहीं जानते। अजीजों, रुबहाम कहते हैं इत्तेदाल पसंद था, और लिखा है उसने मशीरों को तरजीह ना दी, बल्कि उन लोगों को जो उसके साथ खेल कर बड़े हुए थे, उनकी सलाह को उसने कबूल किया। आइए पढ़ें 14वीं आयत में क्या लिखा है। 14वीं आयत को देखो। और जवानों की सलाह के मुवाफिक उनसे ये कहा, मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन उसने कहा, मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। ये सारे के सारे अल्फाज ना तो इस्राएली मशीरों के थे, ये सारे के सारे अल्फाज ना ही इस खुद के जवान के थे। रुबहाम के ये अल्फाज थे, बोलो, क्या इस्राएली बुजुर्गों के थे? ये लंगोटी यारों के अल्फाज थे। और बाइबल कहती कि उसने उनसे कहा, जो इन जवानों ने इसके दिमाग में भरा बगैर फर्क किए कि ये लोग तो मुझसे भलाई की उम्मीद करते गए। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि ये सारे के सारे अल्फाज इस्राएली बुजुर्गों के नहीं थे और ना ही उस बादशाह के खुद के, बल्कि उन जवानों के थे। वो खुद गर्ज ऐश प्रस्त नौजवान थे और बादशाह के साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे, और वो बादशाह को बदी का मशवरा दे रहे थे। और देखो कि बादशाह ने आंखें बंद करके उस बदी के मशवरे को कबूल कर लिया। अजीजों, बाइबल कहती है कि रुबहाम अगरचे शाही नस्ल से होने के बावजूद वो एक अहम मनसब के ऊपर था, लेकिन वो भूल गया कि मैं खुदा का खादम हूं। मैंने कहा, अगरचे रुबहाम अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर था जहां पर
उसे अच्छा मशवरा लेकर अमल करना चाहिए था, लेकिन बाइबल साफ कहती है उसने गलत सलाह को कबूल किया। आओ पढ़ो जरा मेरे साथ इमसाल 14 की 14 और 15। इमसाल 14 और उसकी 14 वर्ष और उसकी 15वीं 2 वर्सेस को पढ़िए। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। शरीरों की क्या बाइबल कहती है? रास्तों में ना जाना और बुरे आदमियों की राह पर ना चलना। 15वीं आयत कहती है उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। ये नसीहत, ये हदायत आज मेरे और आपके लिए है, क्योंकि ये दुनिया, याद रखो, शरारत और खता का गढ़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्तबाज लोग पाए नहीं जाते, वो भी पाए जाते हैं, लेकिन उनको एग्जाम्पल बनाइए जिन्होंने फैसले लेकर जनाब अपने टेढ़े रास्तों को सीधा कर लिया। और बाइबल ये कहती है शरीरों के रास्ते पे ना जाना। मुझे ये बताइए, ये तो सुलेमान की बातें हैं, और उसका बेटा रुबहाम कहां पर था? शरीरों की राह पर था। इजरायली मशीरों को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अक्लमंदी और दानिशमंदी की सलाह को कबूल ही नहीं किया। और आज बताऊं, 2023 साल से इस दुनिया में जनाब हिकमत, दनाई और अक्लमंदी का प्रचार किया जा रहा है, आंखें खोलने का प्रचार किया जा रहा है और आने वाली चीजों को देखने का प्रचार किया जा रहा है कि फैसले लो। लोग अच्छी सलाह को, मैं कह रहा हूं, कबूल करने में इतने ढीले और इतने सुस्त पाए जाते हैं, अगर उन्हीं को दुनिया में छोड़ा जाए तो दुनियादार लोगों से वो ज्यादा आपको चौकस और वो तेज मिलेंगे। ऐसा फर्क क्यों है? अजीजों, बाइबल कहती है हमें शरीरों और बुरे आदमियों के हम कदम चलने से होशियार और खबरदार रहना है। दुनिया के साथ शाने बिशाना मत चलिए, उनकी सलाह पर मत चलिए, उनके मशवरों को मत मानिए, क्योंकि उनकी सलाह नरक में ले जाएगी, उनके मशवरे हमारा गलत रिजल्ट निकालेंगे। बाइबल कहती है शरीरों का रास्ता, शरीरों की सलाह खता और बुराई से खाली नहीं है। और ऐसा ही हुआ। लिखा है रुबहाम की सल्तनत, बाइबल कहती है, टूट के रह गई, क्योंकि गलत सलाह उसने कबूल की, अच्छा मशवरा उसने कबूल नहीं किया। मुझे याद है, इसको निकाल देना। मुझे याद है हमारे अटक शहर में, हमारे अटक सिटी में एक जवान हमारे साथ तकरीबन महीना डेढ़ मीटिंग्स में आया। महीना डेढ़ वो मीटिंग्स में आया और जवान, उसने कोई तौबा बपतिस्मा नहीं किया। और एक हफ्ते के बाद पता चला कि वो शराब बेचते पकड़ा गया। अब उसकी वजह यह थी कि जिन लोगों की तस्वीर उसके साथ थाने में लगाई गई थी ना, वो भी सारे हमारे जानने वाले थे, वो सारे शराबी थे। और मैं अपने चर्च के लोगों से कह रहा था, देखो कि अच्छी सलाह को कबूल नहीं किया, महीना 2 आया, नहीं कबूल किया, और बुरी सलाह को कबूल किया, और देखो रिजल्ट क्या है। क्या रिजल्ट निकला कि ढेर बोतलें लगी हैं सामने टेबल पे और बड़े बड़े शब्दों में उसका नाम लिख के शराबी लिखा गया है। और मैं आपको सच बताऊं, यही रिजल्ट शैतान मेरा, हम सब का निकालना चाहता है। अजीजों, बाइबल की अच्छी सलाह है हमारे लिए, और बाइबल के सुरमा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। पढ़ो जरा पहला सलातीन 12 की 16 में क्या लिखा है। पहला सलातीन 12 की 16 में देखो बुरी सलाह का क्या रिजल्ट निकला रुबहाम के लिए। लिखा है, और जब सारे इस्राएल ने देखा कि बादशाह ने उनकी ना सुनी, तो उन्होंने बादशाह को यूं जवाब दिया कि दाऊद में हमारा क्या हिस्सा, यस्सी के बेटे में हमारी मिरास ही नहीं। आए इस्राएल अपने डेरों को चले जाओ, और अब ऐ दाऊद अपने घर को संभाल। सो इस्राएल अपने डेरों को चल दिए। 19 आयत कहती है, यूं इस्राएल दाऊद के घराने से बागी हुआ और आज तक है।
क्या रिजल्ट निकला? 10 कबीले मतलब लाखों लोग रुबहाम से बागी हो गए। कहते हैं अगर तू रिलीफ देने को तैयार नहीं तो हम तेरी सेवा करने को तैयार ही नहीं है। अगर तू इजरायली बुजुर्गों की मशवरत पर अमल नहीं कर सकता तो जनाब हम भी तेरे साथ आगे चलने को तैयार नहीं है। सोचो, इजराइल की यूनिटी टूट गई, इजराइल का इत्तेफाक, उनकी मोहब्बत, उनका एक साथ चलना, सब गलत इस्लाह ने खत्म करके रख दिया। 10 कबीले, बाइबल कहती है, उन्होंने फैसला किया कि आज से हम रुबहाम की अतात नहीं करेंगे, उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने, बाइबल कहती है, बगावत का ऐलान कर दिया और अपने लिए यरोबाम को अलग से बादशाह बना लिया। रुबहाम के पास क्या रहा? सिर्फ एक कबीला, यहूदा का कबीला, और 10 कबीले किधर गए? यरोबाम के पास। बड़ी तादाद, मेजॉरिटी, बाइबल कहती है, यरोबाम के पास चली गई। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस एग्जाम्पल में मुझे और आपको ये सलाह देना चाहती है कि तुम लिमिटेड चीजों से निकलकर अनलिमिटेड में जा सकते हो, इफरात में जा सकते हो। बाइबल कहती है अनमोल ब्लेसिंग्स में जा सकते हो, लेकिन अच्छे मशवरों को, उसने कहा, को कीमती मोती जानना। क्या सुलेमान ने कहा नहीं कि तालीम और तरबियत को फरामोश मत करना? कहा तेरे गले का जीनत और वो तोक बना रहे। और हकीकत ये है अजीजों के लेक्चर को लोग चर्च की हद तक ही रखते हैं, उसे साथ लेकर जाते नहीं है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हें सलाह की जरूरत है, बाइबल ये कहती है तुम्हें अच्छे मशवरे की जरूरत है, और अच्छा मशवरा ही तुम्हारा फ्यूचर बना सकता है, तुम्हारी इस्लाह कर सकता है, तुम्हें माजी की चीजों से छुड़ा सकता है। आज लोगों के लिए अजीजों, उनको अपना नाकाम होना, अपना बीमार होना, अपना परेशान होना दिखता है, लेकिन उनको ये दिखता नहीं है कि वो गलत मशवरत के अंदर थे, क्योंकि शैतान उनको सलाह देता है मत चर्च जाओ, शैतान सलाह देता है मत दुआ करो, शैतान सलाह देता है मत बोना, शैतान सलाह देता है मत खुदा के साथ चलना। ये तो बेवकूफ लोगों का काम है। अक्सरियत इसी धोखे में जी रही है। आइए इमसाल की किताब, आइए पढ़ो मेरे साथ 11 की 14 में। इमसाल 11 की 14 में क्या लिखा है? इमसाल 11 की 14 देखो क्या लिखा है। भाई परवेज इसको पढ़ो ऊंची आवाज में। नेक सलाह के बगैर लोग बोलो क्या होते हैं? तबाह होते हैं। मुझे ये बताइए, रुबहाम के लिए जो तबाही आई, क्योंकि वो लिमिटेड चीजों में आया, अनलिमिटेड चीजों में वो था, क्योंकि उसका बाप सुलेमान, बाइबल कहती है, एक बड़ा राज उसे देकर गया था, लेकिन लिखा है वो सब चीजें उसे निकल गई। यहां पर यह पढ़ा जाता है कि रुबहाम की लामहदूद सल्तनत तबाही का शिकार हो गई, क्योंकि नेक सलाह नहीं थी, अच्छा मशवरा नहीं था। जो अच्छा और नेक मशवरा था उसे तो उसने नीच जाना था। और बाइबल ये कहती है अजीजों, बाहमी मशवरत एक दूसरे की मदद का बाइस रहती है। बाहमी मशवरत क्या रहती है? एक दूसरे की मदद का बाइस रहती है। जिस तरह याद रखो, 2 पांव एक पांव से ज्यादा दौड़ सकते हैं, क्यों हनी? ऐसा है कि नहीं? 2 हाथ एक हाथ से ज्यादा ताकत रखते हैं, 2 आंखें एक आंख से ज्यादा देख सकती है। सेम इसी तरह कहा जाता है कि बाहमी मशवरत अकेली मशवरत से, अकेली सोच से ज्यादा काम कर सकती है। 2 लोगों की सोच जब आपस में मिलती है ना, तो वो ज्यादा काम कर सकती है। और बाइबल ये कहती है आज नेक सलाह में हमें चलना है, नेक सलाह में हमें जीना है। बोलो आमीन। सो एक अच्छा मशवरा बाइबल दे सकती है अगर हम बाइबल के करीब रहें। एक अच्छा मशवरा हमें होली स्पिरिट दे सकता है अगर उसके साथ रिलेशन बनाकर रखें। अजीजों, ज़कई की तरह हर वो चीज
जो शैतान ने हमें दी है, अगर वो यीशु मसीह की एक सलाह को कबूल करने से ऐसी चीजें शैतान को वापस कर सकता है, तो मेरे और आपके लिए किस चीज की रुकावट है? बोलिए, ऐसा है कि नहीं? बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम जकई की तरह कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। बाइबल ये कहती है अजीजों, एक अच्छा मशवरा, अगर सोचो यीशु मसीह के शागिर्दों को एकदम से छोड़कर उसके पीछे चलने पर वो उभार सकता है, उकसा सकता है, मुझे और आपको भी तो वो ऐसा उभार सकता है, कायल कर सकता है। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान करें तो बोलो आमीन, हालेलुया। सो मेरी आपके लिए एक नेक सलाह है कि आपको रूत की तरह, आपको मूसा की तरह, वो चीजें जो दिखती नहीं है उनको ईमान में देख कर बस आगे निकलिए और चलिए मसीह में। और हर वो चीज जो स्वर्ग जाने से या आसमान की बादशाही का हमें हिस्सा बनने से रोक सकती है, उसको अपनी जिंदगी से निकालो, नहीं तो कल हमारी जिंदगी में सिवाय पछतावे की और कुछ नहीं रहेगा। सब बोलो आमीन, आमीन। मरकजी आयत क्या है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पर जो नहीं चलता, वो आदमी मुबारक है। और रोबहाम को हमने बतौरे एग्जाम्पल देखा। बाइबल कहती है उसकी सलाह बुरी थी और उसका नतीजा भी बुरा निकला। और लिखा है एक लामहदूद बरकत से वो खाली हो गया। खुदा हमारा ऐसा नहीं चाहता, वो हमारा भला चाहता है। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और बाइबल की इस वर्ष को हिस्सा बनाइए कि खुदावन नेक सलाह अगर नहीं तो वो जीवन तबाह कर देगा, नेक सलाह नहीं तो वो परिवार तबाह कर देगा। आज मैं बाइबल की इस नेक सलाह को कबूल करता हूं। धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। हनी के साथ मिलकर दुआ करते हैं, हालेलुया।